اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأعطيته بالكساء وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء؟ فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليها السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن علي عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء
وقال السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي ويا سكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل فقام معكم؟ فقال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا
ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا ورب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاتر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. जनाब मौलाना शान आलम साहब से कि इमाम अली जिम के बारे में लोगों को बारे में बताएं और मौलाना मौसूफ का शुक्रिया अदा करें. अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अद्दाई बिला अमलिन कर्रामी बिला बदरीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह. जैसा कि आपके इल्म में पहले से मौजूद है कि इमाम अली के आज इफ्तिताह है और इंशाअल्लाह और यहाँ पे लोग सारे लोग मौजूद भी हैं. मौला अली अलैहिस्सलाम के बहादुरी के किस्से हम तो बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या हमारा ये फ़रीज़ा नहीं है कि हम भी अपने तरीके से बहादुर हों, मजबूत हों, ताकतवर हों? एक अली के चाहने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो भी अपने जिस्म के एतबार से भी मजबूत हो, इसलिए कि बिना अमल के खाली ज़बान से कहना नहीं कि मौला अली बहादुर थे तो हम बहादुर ना हो, बल्कि हमको भी ज़रूरत है कि हम भी बहादुर बने और ताकतवर बने. इसलिए कि बिना अमल के, बिना कोशिश के, बिना कुछ काम किए, बिना अमल के कोई काम को करना ऐसे ही है, मौला फरमाते हैं कि जैसे बिना कमान के तीर चलाने के. तो हमारी भी कोशिश यही होना चाहिए कि हम भी अमल करें और अपने आप को मजबूत बनाएं, मुस्तहकम बनाएं, ताकतवर बनाएं. एक इंसान कामिल बनने की सलाहियत में से बहुत सी चीज़ों में से एक सिफत ये है, क्वालिटी ये है कि इंसान जो है मजबूत हो, ताकतवर हो, सेहतमंद हो. और सेहतमंद होने के लिए ज़रूरी है कि आज के ज़माने में एक चीज़, बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ है वर्जिश, और वर्जिश का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए इंसान को. इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में उलमाए कराम इस चीज़ पे बहुत कम तवज्जो देते हैं. खुदा सलामत रखे क़िबला मोहतरम मौलाना अज़ादार साहब क़िबला कि इन्होंने, इनकी काविशों का नतीजा है कि माशाल्लाह हमारे दयार, हमारे रन्नों में आज इमाम अली जिम का इनकाद किया, इफ्तिताह किया जा रहा है. आप जाइए ईरान वगैरह में तो वहाँ पे माशाल्लाह से इस चीज़ पे बहुत काम किया गया है,
बहुत सी जिमें हैं, तमाम मदारिस के अंदर जिमें खुली हुई हैं और लड़के जितने तलबा कराम हैं वर्जिश कर रहे हैं, उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। लिहाजा हम भी ज़रूरत है हमारी भी कि हम लोग भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीज़ हों, इससे फ़ायदा उठाएं। और आप लोग से दुआ है कि आप लोग भी दुआ करें बारगाह इलाही में कि परवरदिगार आलम मौलाना मौसूफ खुसूसन जनाब अज़ादार साहब क़िबला की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और इनकी कोशिशों में और कामयाबी अता फरमाए। और इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा कि दिन ब दिन और ये हमारा इलाका रन्नो तरक्की करता जाएगा। और ये इंशाअल्लाह मौलाना की कोशिश तो यही है कि ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लाया जाए। और अभी तक तो आपने हौज़े के बारे में मालूम ही है, अब इंशाअल्लाह जिम भी हो जा रही है। इसी तरीके से और चीज़ों पर इंशाअल्लाह वो काम करते रहेंगे। और जितने भी मोमिनीन हैं आप हज़रात उनकी सेहत व सलामती के लिए एक बावज़ बुलंद नारे सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब गुजारिश कर रहा हूँ अपने इस इलाके के आलिम दीन, आलिम बाअमल, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद रज़ा खान साहब क़िबला से कि आएँ और इमाम अली जिम के बारे में बताएं। और मौलाना मौसूफ जिन्होंने माशाल्लाह से ये नेक कदम हमारे वतन के लिए किया है उस पर कुछ रोशनी डालें। मौलाना के इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन, अम्मा बअदु। वक़द क़ाला अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या रब्बे या रब्बे या रब्बे क़व्व अला खिदमतिका जवारिही वशदुद अलल अज़ीमति जवानिही। अमीरुल मुअमिनीन सलामुल्लाह अलैह जहाँ बहुत सी दुआएं उन्होंने की हैं अपने परवरदिगार से। और दुआ करने का मतलब भी आप समझते हैं, हमको और आपको शायद परवरदिगार से दुआ करने की ज़रूरत हो और बहुत सी चीज़ों में, मुश्किलात में, गिरफ़्तारी में हमारे अमल की वजह से फंसे हुए होते हैं तो निजात की। अमीरुल मोमिनीन के यहाँ ऐसा कोई अमल है ही नहीं है कि जिसकी बिना पे गिरफ़्तारी हो। अमीरुल मोमिनीन दुआ कर रहे हैं, यानी हम लोगों को सिखा रहे हैं, तरीक़ा बता रहे हैं कि लोगों याद रखो परवरदिगार से दुआ करना अपनी सिफत बना लो। जब तक उसे बुलाओगे नहीं अपनी तरफ, वो तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। अमीरुल मोमिनीन ने दुआओं में से बहुत सी दुआएं की हैं। एक दुआए कुमैल है, उस दुआए कुमैल में ये जुमला अमीरुल मोमिनीन का है कि 3 बार कहते हैं, परवरदिगारा 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 हमारे आज़ाओ जवारिह को क़ुव्वत अता कर, क़व्व अला खिदमतिका जवारिही। किस लिए? ताकि तेरी राह में खिदमत कर सकूं। देखिए, बस एक मकसद अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया कि बदन की मजबूती क्यों चाहिए। हाँ, ताकि राह परवरदिगार में खिदमत की जा सके। अगर एक जिम करने वाला नौजवान अपनी बदन को सेहतमंद बना रहा है तो अगर वो मखलूक परवरदिगार के काम आ रहा है, मजलूमों के काम आ रहा है, कमज़ोरों के काम आ रहा है, तब तो वो सीरत अमीरुल मोमिनीन पे गामज़न है। लेकिन अगर इसलिए बदन बनाई जा रही है कि किसी कमज़ोर को ढकेल दिया जाएगा, किसी कमज़ोर को गिरा दिया जाएगा, जी हाँ, या अपने बदन की नुमाइश की जाएगी, लोगों के अंदर खौफ पैदा किया जाएगा, ये मनफी है। इस्लाम इसकी तायीद नहीं करता। एक मुसलमान कतान किसी दूसरे कौम, किसी दूसरे मज़हब या अपनी कौन और अपने मज़हब के किसी इंसान को खौफ में मुब्तला नहीं कर सकता है। और अगर ऐसा किया तो ये इंसान गुनाहगार है कि एक हमारी वजह से अल्लाह की एक मखलूक खौफ में है। लिहाजा जिम करना
आएँ, लोग जिम करें, अपने बदन को बनाएं। बदन साजी अच्छी चीज़ है। एक मकूला है बहुत मशहूर के आक़ल सालिम, सही आक़ल, सही सोचने समझने का फ़ैसला करना। सही आक़ल कहाँ है? सही बदन में। अगर बदन सही है इंसान का तब उसकी अक्ल सही काम करती है, वरना जिसका बदन बीमारियों में मुब्तला है, कमज़ोर है, फलज है, तो उसका जहन भी बहुत काम नहीं करता, उसकी अक्ल भी, चूँकि हमेशा वो अपनी बीमारी, अपने दर्द और अपने इन चीज़ों में मुब्तला है। लिहाजा सही बदन का रखना, मजबूत बदन का रखना सही फ़ैसले करवाता है। सही फ़ैसला लेंगे अपने लिए भी और अपने माशरे के लिए भी। ये रन्नों की बस्ती के बिल्कुल वजह है, कहा जाए कि ये सरजमीन सरसब्ज़ है। ये सरजमीन सरसब्ज़ है। यहाँ सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बकिया यहाँ दरख्त बहुत तेज़ी से बढ़ता है आगे। ये बहुत तेज़ी से आपने देखा होगा। मैं यहीं था और यहीं हूँ और बहुत दिन नहीं गुज़रा है। मदरसे इमाम मूसा काजिम को देखा, उसके इफ्तिताह में था, और उसके बाद ये जो बनने लगी बिल्डिंग इसमें भी आया, फिर ये जिम के इफ्तिताह में भी आया हूँ। ये बहुत चंद दिनों में यानी चंद महीनों में इसको देख रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं तेज़ी से आगे बढ़ना। तेज़ी से आगे बढ़ना, वरना एक बुनियाद पड़ जाती है किसी चीज़ के, सालों उसमें गुजर जाता है। जी हाँ, क्या हो रहा है लोग सोच सोच के कहते छोड़ो यार, वो लगता है बनने उनने वाला नहीं है। ऐसे काम करो, अगर काम करना है तो ऐसे। बहुत से लोग इसकी अहमियत को ना समझते होंगे। ये देखिए मौलाना अज़ादार साहब बनवा दे रहे हैं। ये अज़ादार साहब का कहा भी नहीं जाएगा, और इन्होंने बनवा दिया आज, बाद में पूरे रन्नों के लिए ये कामदेह है। हमारे ही कौम के, हमारी बिरादरी के बच्चे बुजुर्ग सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। सवाब उसको अज़ादार मौलाना ले जाएंगे। बकिया वो न ईंट उठा के ले जाएंगे, न पत्थर उठा के ले जाएंगे, न जो उनका पैसा लगा रहे, मेहनत से आता है। हम ठीक है कि हम पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं, कहीं से लाना भी हुनर है। ला के दिखा दे कोई, इतने बड़े बड़े तो हैं रन्नों में, ला के क्यों नहीं बनवा देते हॉस्पिटल? हाँ, किसके पास रवाबित नहीं है? इसके लिए भी हुनर चाहिए, इसके लिए भी ज़बान चाहिए, इसके लिए भी अखलाक चाहिए, ताकि कोई एतबार करे कि हाँ मौलाना के हाथ में पैसा दे रहे हैं तो कहीं रायगा नहीं जाएगा। अब वो बिल्डिंग देख रहा होगा, जिसने भी मदद किया इसके बनवाने में, वो कह रहा हो जी हमने पैसा अपना सही हाथ में दिया। वरना कितने लोग रवाबित में रहते हैं, पता चला बाद में कहते अरे वो तो घपला हो गया और घोटाला हो गया और ख़त्म हो गया। रन्नों में हमने देखा कि न घपला हुआ, न घोटाला हुआ, न कुछ हुआ, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। यानी जिसने जिस नीयत से पैसा दिया था उसका वो सवाब ले रहा है। ये ऐसा काम कम लोग करते हैं, ऐसे लोग भी कम होते हैं। वरना बहुत से लोग सोचने में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि हम भी चाहते हैं, रहते तो हैं जद्दा में, रवाबित बहुत है हमारे, और हम भी चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल बनवाएं। सोचते सोचते कितने लोग मर गए और कितने लोग मर जाएंगे, नहीं हो पाएगा। याद रखिए, हर एक से काम होता भी नहीं है। वरना और अज़ादार साहब ने काम शुरू किया तो इनको ये पता था, हमने भी शुरू में इनसे कहा था कि देखिए कभी भी अपने बिरादरी की तरफ देखिएगा भी नहीं आँख उठा के, कि बिरादरी वाले आके कहेंगे आपके शाने पे हाथ रख के माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़ादार साहब, कोई तवक्को न रखिएगा। अगर आपको काम करना है तो अपने बल पे कीजिए, अपनी ताकत के बुनियाद पे कीजिए। और यही सही फैसला भी था। बिरादरी के लोगों की तरफ निगाह करने का मतलब समझते हैं? सिवाय इसके कि चार लोग चार कानून बताते, अपना हूँ इसलिए कह रहा हूँ, चार लोग चार राय देते, शायद आखिर में इख्तिलाफ हो जाता। क्या माँ वो कहाँ से घुस गए, उनको कहाँ से पकड़ ले आए, उनको निकालो, उनको बाहर करो, उनको रखो, इसी में उलझे रह जाते, एक काम ना होता। मगर मदरसा भी बन के तैयार हो गया और माशाअल्लाह से ये जिम भी आज तैयार है। आज के इफ्तिताह का दिन है, खुशी का दिन है, और रन्नों वालों को इसको बहरहाल और बेहतर तरीके से इस्तेक़बाल करना चाहिए था। मेरी नज़र में और बेहतर तरीके से इस्तेक़बाल करना चाहिए था। एक
आदमी उठा तो इस काम के लिए कि रन्नों में कोई ऐसी चीज़ भी दिखाए कि सबका अपना अपना घर तो है, किसी के 2 तल्ला तो किसी का 3 तल्ला तो किसी मार्बल लगा है तो किसी का टाइल्स लगा, सब घर तो दिखाई देता है। मदरसा कितना दिखाई देता था रन्नों में, ये बता दीजिए। अब कम से कम एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जा सकता है ना भैया, बर्रे पट्टी में चले जाओ मदरसा है, वहाँ चले जाओ जिम है, वहाँ चले जाओ एक मस्जिद अच्छी सी बनी है। देखिए ये सब करना चाहिए था। हर दौर में सोचें लोग, कुछ लोग इस काम के लिए होते हैं और करते हैं। इमाम अमीर अल मोमिनीन के लिए नाम से ये जिम रखी गई, बहुत अच्छा है। अमीर अल मोमिनीन शुजाअत का एक महवर है, मरकज़ है, और उनके नाम पर अगर रखा गया तो ये भी समझदारी का काम है कि बहुत अच्छा है। और जितने लोग भी इससे फ़ायदा उठाएंगे वो अमीर अल मोमिनीन की सीरत पर चलने के भी, देखिए 2 चीज़ों से अल्लाह की खिदमत की जा सकती है। अमीर अल मोमिनीन कह उसी दुआए कुमैल में कहते हैं कि हमारे आज़ा व जवारिह को कुव्वत अता कर ताकि हम खिदमत अता कर सकें। बाद में कह रहा है वशदुद अलल अज़ीमत जवान ही, सिर्फ हाथ और पैर नहीं बल्कि जवानिह को भी कुव्वत अता कर। यानी क्या? यानी कल्ब को, दिल को, दिमाग को, यानी वो आज़ा जो दिखाई नहीं देते हैं उनको भी मजबूती अता कर ताकि तेरी राह में ये लोग भी काम कर सकें। तो अमीर अल मोमिनीन ने जो दुआ की वो बदन की मजबूती भी इसीलिए कि तेरी राह में काम किया जाए, दिल और दिमाग की मजबूती और तेज़ी भी कि तेरी राह में काम किया जाए। लिहाजा इस जिम का खुलासा ये है कि जो लोग भी यहाँ काम करते हैं वो लोग अगर नेक कामों में अपने इस बदन का इस्तेमाल करते हैं तो कतान वो लोग अमीर अल मोमिनीन की सीरत पे चल रहे हैं और इसका जो मकसद है वो पूरा होता नज़र आएगा। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ हुआ तो कहा वो मनफी पहलू है, उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहिए। कि मसलन बहुत सी जगहों पे शायद ऐसे मराकिज़ खुलते हों जहाँ बदन साजी की जाती हो, जहाँ बदन बनाया जाता हो, मजबूत बनाया जाता हो, शायद किसी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ये मनफी है, ये चीज़ इस्लाम में नहीं है, ये चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम कहता है अपनी ताकत, अपनी मजबूती, बदन को, इन सब को परवरदिगार की राह के लिए। ये परवरदिगार का राह क्या है? परवरदिगार का रास्ता यानी लोगों का रास्ता। अगर जिम में आने वाले नौजवान उनकी सेहत अच्छी रही तो उनका काम ये होगा कि किसी मजलूम की मदद करें, कहीं आग लग जाए तो सबसे पहले बुझाने में आगे बढ़ें, कहीं कोई ऐसा हो जाए बूढ़ा उसको उठा के ले जाना हो तो ये बॉडी वाले क्या करेंगे? बदन बनाने वालों का ये फरीज़ा बनेगा कि ये लोग राह अमीर अल मोमिनीन पे चलते हुए सबसे पहले आवाज़ बुलंद करेंगे कि हम उसे उठा के ले चलते हैं अपने कांधों पे। ऐसे लोगों को तैयार करना ऐसे मुआशरे में एक बड़ा काम था जिसको मौलाना मौसूफ़ ने अंजाम दिया। हम उनके शुक्रगुजार हैं और बहरहाल उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो काम भी उनका हुस्न अमल कहा जाएगा। बेहतरीन तरीका उन्होंने इंतखाब किया और मौलाना मौसूफ़ के कामों को मदरसे से लेके कि उन्होंने रूह और बदन दोनों के लिए काम किया, रूह और बदन दोनों का काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। कि रूही काम मदरसे में लीजिए, जिस्मी काम यहाँ, वहाँ रूह को मजबूत कीजिए, यहाँ बदन को मजबूत कीजिए। ये अगर बदन मजबूत रहा तो रूही काम भी मजबूती से होगा। जब अक्ल सही रहेगी तो समझ में आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है। जब बदन बीमारियों से दूर रहेगा तब इंसान पढ़ पाएगा, वरना जो दर्द मुब्तला रहेगा, बीमारियों में मुब्तला रहेगा तो अपने दर्द में मुब्तला रहेगा, पढ़ेगा क्या वो। लिहाजा बच्चे पढ़ेंगे भी और यहाँ अपने बदन को सालिम भी रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये चूँकि रन्नों वालों के लिए भी होगा और मौलाना मौसूफ़ बहरहाल इसकी इजाज़त देंगे, अब उसके औकात वो मुअय्यन करें कैसे होगा कि सिर्फ ये मदरसे के लिए नहीं, ये पूरे रन्नों के लिए और भी जहाँ से भी लोग आना चाहेंगे उनके लिए इस्तेमाल की इजाज़त दी जाएगी। और ये एक आम चीज़ होना चाहिए, यानी सिर्फ ये ना रहा कि मसलन सिर्फ हमारी बस्ती या सिर्फ हमारा गांव या सिर्फ हमारा मदरसा, ऐसा होगा भी नहीं। मैंने कोई गुफ्तगू नहीं की इसलिए कह रहा हूँ। बहरहाल ये आम चीज़ होना चाहिए कि सबको इसके लिए इजाज़त देनी चाहिए। और मौलाना मौसूफ़ बहरहाल उनके हम फिर शुक्रगुजार हैं, नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमको भी यहाँ मदऊ किया और दावत दी है। और मैंने इन चंद लफ्ज़ों के ज़रिए से सिर्फ ये पहुँचाने की कोशिश की कि दोनों काम बर्रे पट्टी में हो रहा है, रूही भी और जिस्मी भी। परवरदिगार आलम मौलाना की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आप हज़रत से गुजारिश है बुलंद सलवात पढ़ दीजिए पर मोहम्मद अहसन तुम जज़ाकुमुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया
और हमें खुशी है कि पहले दिन से सिर्फ़ एक शख्सियत रन्नों की अजीम हस्ती मौलाना की शक्ल में जो आप देख रहे हैं हमारे साथ में हैं हर कदम पर। और इन्होंने कहा था अगर आप सही काम करेंगे तो हम साथ देंगे। अभी तक तो सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आगे भी सही करेंगे। और वक्त नहीं है, हमारे गांव के प्रधान भी तशरीफ़ फरमा है और बुज़ुर्ग हजरात भी। और सुल्तानपुर से गर्मी में शदीद तशरीफ़ लाए हमारे जनाब MH खान साहब, ये हमारी कौम के लिए बहुत बड़ी नेमत हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम किए इन्होंने और पूरा डेटा बरादरी का तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे काम हैं, वक्त नहीं है मैं गिनाता। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। जी एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी बस एक मिनट मात्रा चाहता हूँ, जो मैं अभी जल्दी से बोल दूँ, शायद वक्त मिले बाद में न मिले। ये जिम हर कौम, हर धर्म, मज़हब और हर एज के लोगों के लिए है। 15 साल से कम के बच्चे बसना है, इसलिए कि जो लोग बॉडी के लाइन में हैं। और हमारी बस्ती के राम बुझारन प्रधान साहब के बेटे भी यहाँ पर बैठे हैं। एक मिनट खड़े हो जाएं आप। जी ये माशाल्लाह ख़ुद बॉडी बिल्डर हैं बरेपट्टी में एक, और ये भी बताएंगे कि 15 साल से कम के बच्चों के लिए हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम होगी, लिहाजा 15 साल से ऊपर के 60, 70, 80 साल के लोग भी आ सकते हैं। और एक 75 साल के साहब थे हमारे गांव के, थोड़ी देर डंपल लेके हमने उनको ऐसे करवाया, कहाँ कहो हथवा तो मजबूत लागत है। अब हम कहीं ये रोज़ करी है तो एकदम जवान हो जाइए। खैर तो सभी आ सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सुन्नी, शिया, हर आदमी के लिए है, किसी एक गांव के लिए नहीं है ना किसी एक फ़िरके के लिए, सब के लिए है। लेकिन ये कि जी और हिसाब से समझदारी से इस्तेमाल करना है, सारे सामान मशीनें की इंशाल्लाह चलती रहें। और कुछ दिनों में मिस्टर बर्रेपट्टी, मिस्टर रन्नो, मिस्टर जौनपुर और मिस्टर यूपी इंशाल्लाह निकले यहाँ से। बदन बनाना भी बहुत बड़ा काम है। आप जानते हैं अभी मैं 2 महीने तक बीमार था, मैं समझ गया कि जब तक सेहत सही नहीं रहेगी आप कुछ भी नहीं कर सकते, और सभी जानते हैं। जी MH खान साहब का इस्तकबाल है, बिस्मिल्लाह। आप लोग नाम लिखवा सकते हैं कल से, और कल ही से इंशाल्लाह जिम में एंट्री शुरू हो जाएगी। आज प्रोग्राम है। जी ये आज बड़े खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जिम का की इफ्तिताह जो हो रही है, मौलाना साहब से हमारी बहुत पहले से बात होती रही है, तो इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर किया कि ये जिम जो है, तो अभी आपने सुना और भी मौलाना साहब की रूह की जो है तक़वियत के लिए ये मदरसा है, और जिसम के तक़वियत के लिए ये ज़रूरी है। और ये एक नुमाया काम हुआ है इस बस्ती के लिए और यहाँ के लिए। इससे ये होगा क्योंकि आजकल ऐसा रहन सहन हो गया है कि लोगों में बीमारियां जो है जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह बीमारी तेजी से बढ़ रही है। और जो शहर में और जगहों पर जो क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट इस वक्त फिजियोथेरेपिस्ट ये क्या कराते हैं, यही तो कराते हैं कि आपकी जो है वर्जिश और ये फिजियोथेरेपी में। तो मौलाना का ये बहुत ही नुमाया काम हुआ है मौलाना साहब ने। लेकिन अभी जो आप बताया है कि अपनी बात को कहना और उस पर जो है पूरा खरे उतरना, मौलाना साहब ने ये चीज अपने मन में सोचा कि ये हमें करना है, उन्होंने करके दिखाया और एतमाद जीतना ये बहुत बड़ी बात है। और ये एतमाद को कर खरे उतरे। हमसे जब भी ये राय लिया, इससे पहले मदरसा जब नहीं खुला तब से भी हम जुड़े हुए हैं, कहा इसका हमें जो है लीगल वे में हमें सब काम करना है, रजिस्ट्रेशन इसको करवाने के लिए पिछले साल आपने कहा हम सुल्तानपुर से आए और बाकायदा पूरा करा के पूरे ऑल इंडिया ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाए। मौलाना पूरे इंडिया में कहीं भी अपना ये खोल सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, ये सरकारी तौर से रजिस्टर्ड है। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जहाँ भी किसी को कभी भी कोई जरूरत पड़ी हम उसके लिए दिन रात तैयार रहने वालों में से हैं, चाहे कोई भी हो। जरूरी नहीं कि मौलाना साहब ने कहा कोई भी बिरादरी का या कोई भी गैर बिरादरी जब भी जरूरत पड़ी हम उसके लिए हम तैयार हैं। दूसरी चीज यह है कि ये फिटनेस के लिए जो है मौलाना साहब भी रोशनी डालेंगे कौन कौन लोग इसमें एडमिशन लें, किस तरह से इसमें क्या है, ये तो हो गई इसकी बात। अब हम ये चाह रहे थे कि सर्वे हम करवाना चाहते हैं कि कुछ बिरादरी के ऐसे बच्चे
जो तालीमी में आगे आना चाहते हैं, आ रहे हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए और फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। अगर वो सिविल सर्विसेज की तरफ अगर आना चाहते हैं, बड़ी छोटी बात चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, इसके लिए हम पूरी तरह से हमारा ट्रस्ट फतेहान वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट जो बनाया गया है बिरादरी के लिए, और इसमें क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे इस लायक हैं उनका एक टेस्ट होना है। वो टेस्ट के बाद अगर उसमें वो खरे उतर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो लोग सिविल सर्विसेज की तरफ भी आए। पढ़ाई देखिए, तालीम के बिना तो कुछ नहीं होना है, और तालीम जब होगी तभी हमारा मिशन और विजन दोनों, मिशन क्या है और विजन क्या है, एक छोटी चीटी से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसका जिस तरह चीटी को आप देखिए गर्मी में, अभी देख लीजिएगा कहीं चीटी गर्मी में इकट्ठा करती है, अपने अनाज के टुकड़े टुकड़े लेके जाती है, इकट्ठा करती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि बारिश का दौर आना है, बारिश के लिए वो इकट्ठा करती है, ये उसका मिशन है। लेकिन फिर उसके बाद उसको ले जाके उन नन्हे नन्हे दानों को 4 टुकड़े में तोड़ देती है, ये उसका विजन है, क्योंकि जानती है कि ये जर्मिनेट होगा, बारिश की नमी आएगी और उस नमी में ये जो है फिर ये जर्म हो जाएगा, यानी पेड़ होगा और हमारी जो कॉलोनीज हमने बनाया है वो टूट जाएगी। यानी उसका इकट्ठा करना, अनाज का इकट्ठा करना उसका मिशन है, और फिर उसके बाद में उसको 4 टुकड़े में तोड़ देना उसका जो है ये विजन है। दूर अंदेशी जिसे कहा जाता है, तो दूर अंदेशी के लिए हम लोग को तो जो बीत गई, लेकिन जो बची हुई जिंदगी आने वाले बच्चों के लिए या आने वाले पीढ़ी के लिए हमें सर्व करना चाहिए और उनके फलाह बहबूदी के लिए हर तरह से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी धरोहर है, यही बच्चे या यही आने वाली पीढ़ी हमारे आगे हमारे मकसद को लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे, यही हमारे मकसद को पूरा करेंगे। अच्छी तालीम होगी तो हम अच्छी अर्निंग करेंगे तो अच्छी आजादारी कर सकेंगे, सामाजिक काम कर सकेंगे, और भी समाज के और भी जो काम है जो हमारा फर्ज है। मरने से पहले हर इंसान को कुछ करके ही जाना चाहिए। अब जब ये मौलाना साहब ने बताया कि ये लोग सोचते रहते हैं लेकिन नहीं किए, लेकिन देखते देखते ये बिल्डिंग तैयार हो गई, मदरसा तैयार हो गया, जो इनका मकसद था वो मकसद में ये खरे उतर रहे हैं। अभी तक तो हर कोशिश, तो इन्हीं सब को देखते हुए हम लोगों को भी हौसला अफजाई होती है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, जहाँ जरूरत पड़ी हम यूज किए जा सकते हैं, जितना हमारे अंदर सलाहियत है उतनी सलाहियत के लिए, चाहे लीगल वे में वकालत से फैज़याबी हासिल करना चाहते हैं बिरादरी या गैर बिरादरी जो भी हो, चाहे हमारे तालीम से, उसके लिए हमेशा हम तैयार रहने वाले हैं। आप आवाज दीजिए, हम लब्बैक कहेंगे, जहाँ भी आधी रात को जरूरत पड़ेगी हम कहेंगे। और भी लोग जानते हैं हमारे बारे में, हमें हर साल जो अवार्डेड किया जाता है, अभी तो उप मुख्यमंत्री ने किया, लखनऊ में अवार्ड दिया है, ब्रजेश पाठक ने किया है, तो सामाजिक काम करना चाहिए इंसान को, जब कर सकता है अगर सलाहियत करना चाहिए। अभी आप CAA लागू हो चुका है, जान रहे हैं, NRC लागू होना है, इसके लिए हम सुबह 9:30 बजे आ गए। हमने अभी जो 10 साल पहले शजरा जो कंप्लीट किया था, अभी हमने अपडेट किया है, अभी हम सुबह से आए बैठे नहीं, अपडेट ही करते रहे। हमने कहा कि जो हो सकता है अपडेट कर लें, अपडेट करने का मतलब वो प्रिंट होनी है, क्योंकि वो ब्रिज बंसावली भी लगनी है जब अभी NRC लागू होगा, तो इसलिए अपने को भी हमें तैयार रखना चाहिए, हर तरह से अपने कागजात दुरुस्त रखना चाहिए। जहाँ किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है वो बताएं, हम उसके लिए काम करेंगे लीगल वे में, चाहे जिस तरह से। बाकी हम मौलाना अफजल साहब के शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जो है हमको यहाँ दावतनामा दिया, हम आए वहाँ से, और फिर उसके बाद और आगे के लिए मौलाना साहब बताएंगे क्या करना है, और जहाँ जब भी जरूरत पड़े किसी के लिए भी हम तैयार रहेंगे हमेशा। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ जनाब मौलाना अज़दार अब्बास साहब को। वाकई काबिल तारीफ़ काम है इनका, जो काम बच्चे शहरों में, बड़े शहरों में देखते रहे होंगे। आप लोग जाते हैं, जो शहरी क्षेत्र में जो चीज़ मिलती थी देखने को, वो सुविधा आज, वो व्यवस्था आज एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने उपलब्ध कराई है। इसके लिए जो है नौजवानों को चाहिए कि इनका खैर मकदम करें, इनका इस्तकबाल करें, इनका साथ दें, इनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत मुश्किल से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे पहले, बहुत पहले देखे होंगे, कहीं भी शहरों में, बड़े शहरों में फिटनेस, आज स्वास्थ्य के लिए आदमी कितना पैसा खर्च करता है। हर आदमी करीब करीब बीमार है। नौजवान के अंदर थोड़ा सा ये वो होती है कि हमारी फिटनेस सही रहे, सेहत बनाएं और थोड़ा तंदुरुस्ती बनाएं,
इसके लिए शहर जा कर के काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। और बहुत सारी ऐसी आज दवाएं चल गई हैं फिटनेस के लिए, दवाएं खाते हैं नौजवान। उससे बेहतर है कि इस जिम में मौला अली के नाम से जिम है, आपको यहाँ आएंगे तो एक क़ुव्वत अलग सी महसूस होगी, क्योंकि ये जिम जो है मौला अली के नाम से है। और मौला अली के नाम से जब आप मौला अली का नाम लेकर के यहाँ जिम में आएंगे तो वाकई आपके अंदर एक रूहानी ताकत पैदा होगी। मैं आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जो थे, मुख्य अतिथि थे, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार आदरणीय कृपा शंकर जी आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि थे, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ सके हैं। सबसे पहले बता दें आपको, क्योंकि उनकी व्यस्तता बहुत है। आज चुनाव चल रहा है, भावी उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनका कार्यक्रम बहुत लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने माजरत की है। और जो है उनके प्रतिनिधि अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। और दूसरे चीफ गेस्ट हमारे सैयद मेराज हैदर साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं उनकी जगह। अब मैं आज इस कार्यक्रम में इस ग्राम के ग्राम प्रधान राम मुजारत यादव जी से आग्रह करता हूं, आए और इस अवसर पर अपने विचार को रखें। धन्यवाद सभी हमारे मौलाना साहब और जो मुख्य हमारे मेहमान दूर दूर दराज से आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए, कोई काम कोई करता है तो जब अगल बगल नहीं होता है तो लोगों को अजीब लगता है। कुछ लोग उसमें जो ना मतलब थोड़ा से मजाक, मतलब ठेठौर भाषा में बताएंगे, मजाक करते हैं, कौन सा काम फान दिए। देखिए, पहले बम्बई मतलब बड़े बड़े शहरों में जिम देखने को मिलता था, और ज़्यादा तो हम नहीं, जो ना हमारे ऊपर बीता हुआ है। अभी हमारा लड़का यहाँ बैठा है, हमने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जांच करवाया, उसके बाद बोले कि 2.5 साल लगेगा, और 2.5 साल लगेगा, और 15 दिन की दवा जो ना वो देते थे, और 1050 रुपये उनकी फीस थी। मेरा लड़का बगैर जिम में गए हुए एक किताब पढ़ के आज जो ना खड़े दो, आज मेरा लड़का जो ना है 2.5 महीना दवा इसका चलाया जो है, जबकि इसकी गठिया की जो ना शिकायत थी और हल्का फुल्का बुखार आ जाता था, तो इसके लिए जो ना मतलब, लेकिन इतना ये मेहनत किया कि छत पे हमसे झूठ बोल करके इसने अंगूठे में सपाट मार के जो ना ऐसा कला किया जो ना इसको 6 पैक जो ना मतलब घर पे बना के गया। उसके बाद जो ना ये साइकिल से जो ना जौनपुर जो ना कोचिंग के लिए जाते थे, और कोचिंग के बाद जो ना वो जिम में जाते थे हमसे छुपा, लेकिन हमारा पैसा बचा। आज उनकी शरीर अगर आप पकड़ेंगे, आपको लगेगा कि मैं कोई लकड़ा तो नहीं पकड़ लिया, लोहा तो नहीं पकड़ा हूं। तो भैया ऐसा है मौलाना जी, जो आप ये कार्य के लिए आपकी जो इच्छाएं बनी, इसके लिए आपको जितनी तारीफ की जाए कम। क्यों कि इस पूरे रनों में आप एक ऐसा काम कर दिए हैं, आने वाले भविष्य में हम कहते हैं नौजवान की बात नहीं है, नौजवान की बात नहीं है, ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ये भी आएंगे, इनका जो ब्लड कहीं रुक रहा है उसका भी संचालन चालू हो जाएगा। अभी मेरा लड़का, एक मेरे रिश्तेदार थे, उनको ब्रेन की जो ना मतलब समस्या आ गई थी, पीजीआई से वापस जो ना आगे जो ना ये लड़का जो ना मतलब योगा बताया ऐसे ऐसा करना है, और वह आज जो ना खुद अपने पैर से चलना उठना बैठना सब चालू होना हो गए। तो भैया ये देखिए, अगर निरोगी होना है तो योग जरूरी है। आप दवा खाएंगे, हम तो ये कहेंगे कि आयुर्वेद और होम्योपैथिक तक रहिए,
ये लोग फौज में जाएंगे जो ना ऐसी दवाइयाँ जो ना मतलब है, तो कल जो ना ये आपके हर पार्ट को कमजोर करेंगे। आज हमारा 51 साल लगभग पूरा होने वाला है उम्र की बात, लेकिन 4-5 साल से मेरा लड़का हमको जो ना मतलब नौजवान बनाया है और हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, जबकि आप लोग के सहयोग से आप लोग 2 बार हमको गांव के जो ना मतलब दिए चांस, जो हो सकता है हम करते हैं। लेकिन मैं जिस हाल में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, रात बिरात सुबह शाम दौड़ते रहता हूँ, वो हमारे लड़के के देन है। हमारे पास कुछ नहीं है, ये शरीर है। आप जैसे शरीर को एक कांच समझिए, इसको विपरीत जो है मतलब अनायास कहीं बेमतलब के आप किसी चीज को जिद करेंगे या गुस्सा करेंगे, वो आपका नुकसान करेगा, दूसरे का नहीं। इसलिए जो नियम है सोने का, खाने का, हर एक चीज का जो है उसका आप पालन करिए। लेकिन रही बात है जिम का, जिम देखिए हर एक चीज कोई काम होता है बिना सहयोग का नहीं होता है। आप लोग जो है मतलब सहयोग करिए, और मैं वादा करता हूँ मौलाना जी, जो भी हमसे हो सकेगा मैं आपकी मदद करेंगे। हमको 3-4 जगह जाना है, इसके लिए जो है मैं आपसे क्षमा मांगेंगे हैं, और नहीं तो हम समय आप जो है मतलब चाहे जितना लेके मैं अकेला हूँ, लड़के बुलाया हूँ जो ना, अगर आपको उस पे हर मशीन को जो ना देखना है, दिखाना है, वो पूरा लड़का जो ना, हम तो कुछ नहीं है, बस आप लोग के जो ना आशीर्वाद चाहिए, इससे ज्यादा हम नहीं कहेंगे। इसी बात पर मैं विराम देता हूँ, धन्यवाद। वाह भाई, चलिए प्रधान जी आपके साथ है टपका देखिए ग्राम प्रधान राम बुजारत जी फिटनेस के महत्व समझा रहे थे। इनके बच्चे को लाभ हुआ है, और जो भी लाभ हुआ है इनके बच्चे को, देखिए मिसाल इन्होंने दी है आपके सामने, और बच्चा भी मौजूद है कि मिसाल लोहा के हो गया है। तो रन्नों के जो भी बच्चे हैं, नौजवान हैं, अगर बुजुर्ग नेता भाई आपको भी जवान होना है तो थोड़ी मेहनत करना होगा। उसके लिए संसाधन यहाँ पे मौजूद हैं, मशीनरी उस तरह की लाई गई है यहाँ पे, आप उसको उपयोग कर सकते हैं। और ये भी नहीं सुना है बहुत कम, मतलब कोई बहुत ज़्यादा इनका चार्ज भी नहीं है, कम चार्ज में बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई है मौलाना साहब ने। इसका एक कर्तव्य दिखाया जाएगा जिसमें नौजवानों में जोश आएगा। आप लोग जोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। आप लोग देखें कि डिमॉन्स्ट्रेशन देखें कि फिटनेस, ये जो जिम करते हैं लोग क्या कर सकते हैं, उसका प्रदर्शन करेंगे। मौलाना साहब अभी खुद प्रदर्शन कर देंगे। मौलाना साहब भी एक अच्छे ट्रेनर हैं, इनके पास इन्होंने ट्रेनिंग अच्छी ली है। और अभी एक आपके सामने छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाएंगे लकड़ियों को तोड़ करके, आप लोग देखें और जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच मौजूद है भावी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी माननीय आदरणीय कृपाशंकर जी के भतीजे हैं, जिनको आना था कृपाशंकर जी को, वो आ नहीं सके। आप लोग तालियां बजाकर लाठी नहीं, अभी तो मौलाना साहब ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि लोहे का राड भी टूट जाएगा। बहुत ताकत है नौजवानों, देखिए आप भी कर सकते
देखिए किस तरह से अपनी बॉडी पर राड को तोड़ दिया मौलाना साहब ने। परवेज जी ये ट्रेनर है जो आप लोगों को यहाँ जिम में ट्रेनिंग देंगे। ये अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। और इसको बगौर देखिए नौजवानों, क्योंकि आप लोग भी बाद में यही कर सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग भी राड तोड़ सकते हैं। लाठी नहीं है तो लाठी है, इसके बाद आप लोग लोहे का भी राड तोड़ देंगे। इस करतब के बाद 2 मिनट मौके दे दीजिए आप लोगों का लेके, उसके बाद फीता काट करके आज जिम का उद्घाटन करेंगे। देखिए आप लोग ऐसा ना करिएगा घर जा करके, क्योंकि बहुत खतरनाक काम है। बच्चों से गुजारिश है कि ऐसा ना करना। बगैर ट्रेनिंग के कोई काम नहीं होता। मौलाना साहब को इसमें महारत हासिल है, इसलिए ये कर लेंगे। आप लोग अभी से घर जाकर ये सब ना करिएगा। देखिए जोरदार तालियों से आप लोग इनकी हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि काफी हैरत अंगेज काम है। ये देखिए तालियों से आप लोग इनकी हौसला अफजाई करिएगा।